Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota, MSc Semester 3rd, Paper 3rd, Unit 5th के पार्ट 15 मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में हमने अभी तक कई सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को देखा है। इसी क्रम में बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट हमने पार्ट 14 के अंदर पढ़ा। उसकी हमने मैकेनिज्म देख रहे थे। हम इस मैकेनिज्म जो है बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट की, वो अभी तक अनसर्टन मैकेनिज्म है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए गए हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि किस तरह से हम ऑर्थो डैश हाइड्रोजो ऑर्थो डैश डाइमिथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन और ऑर्थो डैश डाइथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन लेके और बेंजाइडिन को फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो डाइथॉक्सी कंपाउंड से कर सकते हैं। इसी क्रम में इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हम देखें थर्ड पॉइंट, इट वाज आल्सो शोन दैट द बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स specific acid catalysis. It is the first order in the hydrogen compound and may be of both first and second order in the acid. क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा? माइनस डी हाइड्रोजोबेंजीन अपॉन डी टी गिव्स K2 हाइड्राइड H प्लस K2 हाइड्रेटेड H प्लस होल स्क्वायर. A number of orthohydrogen compounds such as hydrazotoluene have been found to rearrange under a mixed first and second order catalysis, but the overall result is near the mean 1.5. इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों ही नहीं होके ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनका मीन होता है 1.5. इसी मैकेनिज्म के फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हम देखें तो बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रीअरेंजमेंट्स इन H2O वेयर द एसिड इज H3O प्लस एंड D2O वेयर द एसिड इज D3O प्लस, it was proved that the protonation at one or both of the nitrogen is not a slow determining step. If the protonation is the rate determining step of the rearrangement, it is expected that there should occur a retardation in the rate of reaction in D2O. There occurred a two-fold increase in the rate of reaction in D2O. This is expected because D3O plus in D2O is a stronger acid than H3O plus in H2O. फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर हम देखें, फोर्थ में हमने देखा कि किस तरह से D2O जो है वो स्ट्रोंगर एसिड के रूप में बिहेव करता है, इसलिए जो है हम ड्यूटेरेटेड वाटर इसमें यूज़ कर सकते हैं. फिफ्थ है, एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिंग प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन कंपाउंड बाय ड्यूटेरियम और ट्रिटियम could not slow down the rate of their rearrangement. It means that the loss of two ring protons required for the formation of benzidine and diphenylene is also not a slow rate determining step. Theories which explains the mechanism of the benzidine rearrangement are as follows. कई सारी थ्योरीज हैं जो कि बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है. उसमें फर्स्ट थ्योरी है केज्ड रेडिकल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू this theory, benzidine rearrangement
involves a two proton mechanism which operates through the formation of two cation radicals in the rate determining step. Ar NH2 plus NH2 plus Ar gives Ar NH2 Ar. Each of the cation radical is stabilized by resonance and is prevented from diffusing away from the other by a case of solvent. All types of products obtained in benzidine rearrangement assumed to be formed by recombination of fragments within the solvent case. The cased radical theory could not be accepted because ESR spectroscopy failed to detect any radical in the rearrangement of hydrobenzene. Also, it is difficult to visualize the homolytic dissociation of monocations into the unsymmetrical radical ion in the absence of repulsion between the like charges. तो केस्ड थ्योरी हमने देखी. इस केस्ड थ्योरी के अंदर भी जो है वो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये फेल हो गई कि किसी तरह का कोई रेडिकल जो है उसका फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट में नहीं होता है, जबकि हम हाइड्रोजोबेंजीन का रीअरेंजमेंट जब करते हैं बेंजाइडिन में तो कोई इसके अंदर रेडिकल नहीं बनता है, कोई रेडिकल डिटेक्ट नहीं हुआ है. इसलिए दूसरी थ्योरी दी गई जो है पाई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. एज द बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट इज kinetically of first order in acid according to Dewar, the monoprotonated hydrogen compound undergoes a rate determining hydrolytic fusion to form pi complex. This complex does not represent the transition state but represent a definite compound in which the covalent bond between the nitrogen atoms has been replaced by a delocalized pi bond between the aromatic rings. इसके अंदर पाई बॉन्ड्स जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है और जो हमारा हाइड्रोजोबेंजीन है उसका उससे लगे हुए ग्रुप जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इसके अंदर. तो ये पाई बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट को बताता है. द पाई बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर कैन होल्ड द एरोमेटिक रिंग्स इन पैरेलल प्लेन्स. These rings can rotate and collapse to form the various products. When it was found that the rearrangement is kinetically of second order in acid according to modification, that the attack of second proton on A compound, A structure जो हमारा बना है बेंजाइडिन, was rate determining step इसके अंदर होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. दूसरी नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है हमारी पोलर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट वाज अज्यूम्ड दैट अ पोलर ट्रांजिशन स्टेट इज डेवलप्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजोबेंजीन वाया a two proton mechanism. As the diprotonated molecule of hydrobenzene has two adjacent positively charged nitrogen atoms, the repulsion between them facilitates
the cleavage of the NN bond, nitrogen-nitrogen bond, as a result of hydrolysis, two loosely bound aromatic rings are formed. One of these rings carries 2 units of positive charge and thus behaves like a dication. The other ring does not have charge but has the character of an aryl amine. This possesses fractional dipolar charge which is disubstituted in the same manner as in an aniline molecule. तो ये मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हाइड्रोजोबेंजीन से हमारा डाई पॉजिटिव कैटायंस जो हैं वो बनते हैं. ये डाई पॉजिटिव डाई कैटायंस जो हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा जिसमें NH2 ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. जब इसका रेजोनेंस होगा तो एक NH2 ग्रुप फ्री होगा लेकिन दूसरा NH2 ग्रुप जो है वो डाइकैटायन का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन से, ये डाइपोलर ट्रांजिशन स्टेट है हमारा, इसके फॉर्मेशन से हम बना सकते हैं बेंजाइडीन. इसके बाद में ये इसकी कुछ थ्योरीज थी. उसके बाद में हम इनकी एप्लीकेशंस अगर देखें तो बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट की एप्लीकेशंस में एज द alkaline reduction of the nitro compounds yields hydrojobenzene very readily. Benzidine rearrangement provides an important route for the preparation of 4,4-disubstituted biphenyls. The 4,4-diamino diphenyl and its derivatives are especially used in the synthesis of dyes, especially for cotton. An example is benzopurpurine 4B, which is the important red dye and is obtained from orthotoluidine as a starting material. तो ऑर्थोटोलुइडिन से हम बेंजोपरप्यूरिन 4B रेड डाई का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इस तरह से जो है ये डाइस के बनाने में भी काम आते हैं. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये डाई है रेड डाई. तो इस रेड डाई से हम जो है इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, रेड डाई का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट से. तो ये इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम कई तरह की ओ डाइस का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इसमें जो ये हमारा पोर्शन है जो रीअरेंजमेंट होके डाई का पोर्शन है, द डॉटेड रेक्टेंगल एनक्लोज द पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट. तो ये जो है वो बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट से बनता है. तो बेंजाइडीन रीअरेंजमेंट में हमने देखा कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म अनसर्टन है, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं. उसके बाद में किन किन थ्योरीज पे बेस्ड इसकी मैकेनिज्म हो सकती है. 3 थ्योरीज हमने इसकी पढ़ी, केज्ड थ्योरी, पाई कॉम्प्लेक्स थ्योरी और पोलर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. पोलर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो इसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बेसिस पे ही जो है इसकी मैकेनिज्म को
प्रूव किया गया है। इसी मैकेनिज्म के बाद में बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट जो है स्पेशली डाइस को फॉर्म करने में, डाइस को बनाने में काम आता है। रेड डाई जो है वो इससे बहुत अच्छे से बनती है, जबकि हम इसके डेरिवेटिव्स लें 4,4 डैश डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, तो ये ऑर्थोटोलुइडिन अगर हम लेते हैं तो इससे बेंजो परप्यूरिन बनता है 4B, ये रेड डाई के नाम से मिलता है। तो बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। थैंक यू।